Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? Fine, fine. Yeah. So, did you guys get a chance to work on MailChimp? Anyone else? I think yesterday Saif sent it. Salva has already done. Yes, sir. Okay. So, also tried this analytics of that MailChimp. I'm like, did you try to look into number of opens and all? How many people have checked it? No, sir. I just sent it. Okay. सैफ आपने शायद भेजा था लोगों को तो लाइक did you get opens bounced and other kind of information on your emailers? Yes, Assalamu alaikum. Yeah, I've checked. Yeah, I have checked, and I think 50% have opened, Okay. and yeah, and no one got bounced. Okay. Everyone received. But yesterday I tried again. I sent yesterday one more time just to try to get the mail in the inbox. Mhm. But I've changed subject line and everything, but still it came in the spam folder. But your mail came to me in the mail folder. For you? Yeah, For it was in the mail folder. It was in the mail okay, folder. Yeah. okay. Because for some it came in spam folder. Mhm. So um, just to get in the inbox, I tried this different Right, subject line. right. No, I got it in the box. Okay, in the inbox. Huh? Yeah. Okay. The other assignment I've done yesterday Mhm. in the console search console, Okay. and Yeah, yeah, that I saw. One time you got failed. yeah. Then I tried again two Right, times. right. The third time it came out. Okay. Okay. Yeah. So maybe after a couple of days time, you can also search it in your web in Google. Okay. Yeah, yeah. The possibility, Correct. yeah, there is a Oh, possibility it might be called by the Google. Okay. 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 So thank you. Okay. How about others? Others also try to work on this Google Search Console, verified their. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Yes, sir. I also did the same for Google Console, and first time it failed, second time success. Okay. And right now also I refresh, it's showing success, and it said to come after a day or so. So I hopefully I can see the reports coverage wala part, Right, inshallah. right. Yes, that's it then, sir. Except that everything done. Alhamdulillah. Sir, how long does it take to Most receive the mail for like 10 recipients? it don't take much time. I think hardly any time. 10 minutes maximum. Yeah, like I did send it around 10-15 minutes before, but no one have received yet. It is like it is yet in the sending Okay. level. Okay. So it don't take much time. Mostly it's quite quick. Sometimes if you have good database, then only it take a little longer time, 10 minutes, 15 minutes or something like that. But more or less it takes very short time. So once sending is over, then I think you can be able to look into that part. Okay, sir. Yeah. Just a minute.
And did you guys search your Google My Business page in Google search result? Any one of you have searched it? मेरे ख्याल से वो अब तक आ चुका होगा गूगल के डेटाबेस में, हमारे गूगल सर्च रिजल्ट में. How many of you got success in terms of verification on Google and all? Google My Business का verification आप लोगों का हो गया था? जी सर, हो गया अच्छा, सक्सेस. तो फिर तो गूगल में आपने सर्च किया? नहीं, सर्च तो नहीं किया. अच्छा. क्या नाम था उसका आपके? वो विक्स की साइट है ना. नहीं नहीं, ये गूगल माई बिजनेस की बोल रहा हूँ, विक्स का नहीं. गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल पेज बनाया था आपने, जिसमें डॉट बिजनेस डॉट साइट करके एक लिंक आया था. जी जी जी. हाँ, एक एक मिनट अभी चेक करें. जी, क्या नाम है आपके इसका वेबसाइट का? स्टार एवियन. स्टार एवियन. मतलब ये हमारी और जो नॉर्मल डोमेन साइट है शायद वो खुल जाएंगी. मैं जो नहीं, देख लेते हैं. देख लीजिए, मेरे ख्याल से जितने ने भी गूगल माई बिजनेस का पेज आप लोगों ने बनाया है वो इंडेक्स हो जाना चाहिए. अगर वो आपका वेरीफाई हो चुका है प्रोफाइल, तो वो अब तक गूगल में इंडेक्स हो जाना चाहिए. एंड देन उस पे जो इनसाइट है, गूगल माई बिजनेस का इनसाइट है, उस पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को देखा है. वो सारी चीजें वहां पे दिख के आएंगी. राइट. तो ये जो भी प्रैक्टिसेस अब तक हुआ है वो ये है कि हम रेगुलरली अपने उसको अगर हम अपडेट करते रहे तो उसमें ये होगा कि हमारी प्रोफाइलिंग बनती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहे. सर डायरेक्ट बिजनेस साइट रैंक होगी या फिर जो लाइक हमारा मैप के साथ मैप का जो एक व्यू आता है वो एक मिनट, जरा सा एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करता हूँ. हेलो सर.
वेरी सॉरी गाइस, एक कॉल था मेवाड़ यूनिवर्सिटी से, सो आई हैव टू टेक, वाइस चांसलर का कॉल था, सो आई हैव टू टेक दैट कॉल। एनीवेज, मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों से, आई जस्ट फॉरगॉट इट। हाँ, गूगल माई बिजनेस का मैं बोल रहा था कि आप लोग अगर उसका देख लीजिएगा तो शायद अब तक रैंक होना शुरू हो गया होगा, बट एनीवेज अगर नहीं भी हुआ है तो उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे पुश करके कहीं कहीं पे अगर आप पोस्ट करना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो भी रैंकिंग करना शुरू कर देगा। तो आज सर डायरेक्ट साइट इंडेक्स होगी या फिर जो मैप का व्यू रहता है राइट साइड में साइट्स के वो अगर वाली दोनों, अगर आपका मैप वेरीफाई हो चुका है तो राइट साइड में भी दिख के आएगा और डायरेक्ट भी दिख के आएगा। अगर मैप वेरीफाई नहीं हुआ है तो पेज दिख के आ जाएगा, मैप नहीं दिखेगा। बट मोर और लेस आप लोग अगर लॉग इन करके देखेंगे गूगल माई बिजनेस में तो आपको पता चल जाएगा कि वो वेरीफाई हुआ है या अभी भी पेंडिंग में है। बट अब तक या तो आपको मेल आ जाना चाहिए या फिर वो वेरीफाई हो जाना चाहिए। सर उसका लाइक राइट साइड का तो आ रहा है बट जी। डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। तो राइट साइड में जो आ रहा है वहां पे आपको मैप के साथ वेबसाइट का भी लिंक आ रहा होगा। तो वेबसाइट पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपको माई डायरेक्ट, बिजनेस साइट पे। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। ये लिस्ट हो गया है फिर आपका। सर एक इशू ये है कि उसमें लाइक नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, लाइक नहीं हुआ नंबर है। को स्ट्राइक कर दे रहा हूँ। हाँ, तो आप एक बार फिर से वहां पे जाके देखिए वेरिफिकेशन में कि वो क्या बोल रहा है आपको गूगल माई बिजनेस में। तो वो स्टेप आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, या फिर आप वेरिफिकेशन को कोई और प्रोसेस से आप कर सकते हैं, इन द सेंस जो पोस्टल कोड वाला है तो उससे भी अगर वेरीफाई हो जाता है बिजनेस तो आपका फोन नंबर पब्लिश हो जाएगा। मेरा ओके जो सर। मेरा जो हुआ था जब हमने डिजिटोज को लिस्ट किया था तो मेरा फोन से वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ओटीपी हमने सबमिट किया, सब कुछ किया, फोन से वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद वेरिफिकेशन बाय पोस्ट किया तो मेरे पास पोस्ट कार्ड आया, गूगल से पोस्ट कार्ड आया, उस कोड को मैंने सबमिट किया तो उसके बाद वो एक्सेप्ट करके वो वेरीफाई करके पब्लिश हो गया। अच्छा, गुड पार्ट क्या है कि अगर आपका एक ईमेल आईडी और एक एड्रेस अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो उसी ईमेल आईडी से कोई नया बिजनेस अगर आप गूगल माई बिजनेस पे नया अगर एड्रेस या बिजनेस ऐड कर रहे हैं तो वो वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लेता है, वो फिर बहुत ही फास्ट वेरीफाई हो जाता है। तो मेरा जब डिजिटोज का जब हमने वेरीफाई किया था, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हमारा इसलिए भी इजी रहा, वजह क्या है कि हमारा डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी है, info@digitos.com पे हमने गूगल माई बिजनेस क्रिएट किया। अब जब मैंने नेक्स्ट क्रिएट किया, इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का जब हमने क्रिएट किया तो वो इंस्टेंटली क्रिएट हो गया, क्योंकि एक अकाउंट एक एड्रेस वो वेरीफाइड था तो वो सबमिट किया और उसके बाद थोड़ी देर के अंदर वो वेरिफिकेशन का हमको कंफर्मेशन आ गया। तो अगर एक आपका गूगल माई बिजनेस एक अकाउंट आपका अगर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद के अकाउंट्स आपको ऐड करना आसान रहता है। सर देन लाइक मेल्स में प्रॉब्लम नहीं होती, ये पूरे मेल्स यही ईमेल पे नहीं जाते देन? जी 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 जी, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग का एक एक टॉपिक है जिसको कि मैं अभी आप लोगों के सामने अभी ओपन करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। सर एक छोटा इशू ये है कि लाइक मेलचिम्प में वो लोग रोक दिए, मेल ड्राफ्ट में डाल दिए, सेइंग कुछ इशू है बोलकर। अच्छा, तो आप अगर शेयर कर लीजिए तो शेयर कर लीजिए, नहीं तो एक बार फिर से क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, आई विल क्रिएट वन मोर टाइम। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताऊं कि आप शुरू कहाँ से, जब लॉगिन करते हैं तो आप क्रिएट पे जाइए। क्रिएट पे जाने के बाद ईमेल पे क्लिक करिए, वहां पे आपको रेगुलर आएगा, रेगुलर को आप ये करिए। उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑडियंस 2 का आता है। तो ऑडियंस देख लीजिए कि ऑडियंस आपने ऐड कर लिया है वहां पे, नहीं तो 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, जो भी है वो आपको वहां पे वैलिडेट कर देगा कि हाँ इतने लोगों को है। आप व्यू कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फ्रॉम में आपको ईमेल आईडी आपका डालना है।
फ्रॉम में दो चीजें डालनी होती है, एक तो नाम डालना होता है कि किसके मतलब क्या दिख के आना है, जो फ्रॉम का जो नाम आता है वो क्या दिख के आना है। तो डजंट मैटर कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल shahryar123@gmail.com से आपने मेलचिम्प ज्वाइन किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे अगर फ्रॉम में आप फॉर एग्जाम्पल info@shahryar.com आप डाल रहे हो तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। वजह क्या है कि वो फ्रॉम जो है वो मास्क्ड होता है, एक्चुअली भेजते हैं किसी आईडी से बट वो मास्क्ड होता है, लोगों को दिखेगा क्या, तो वो वहां पे आप डाल सकते हैं। या फिर कोई दूसरा ईमेल आईडी डालना चाह रहे हैं, जैसे irtikaappliances@gmail.com आप डाल रहे हैं, तो आप नाम में जो है आप इर्तिका अप्लायंसेज LLP डाले, ईमेल में irtikaappliances@gmail.com डाले, तो अब जो रिसिपिएंट होगा उसको आएगा कि भाई इर्तिका ने भेजा है, एक XYZ कंपनी ने भेजा है, ठीक है। उसी तरह से अगर सैफ ने तो खैर अपना डोमेन ऐड किया है, बट इवन इफ ही वांट टू क्या है सेविएशन करके है क्या, स्टारवेशन, स्टार एवियन राइट, तो स्टार एवियन करके अगर वो डाल के अगर भेज रहे हैं स्टार एवियन टूर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद staravian@gmail.com करके भेज रहे हैं, तो जो रिसिपिएंट होगा उसको वही चीज दिख के आएगा, ठीक है। तो इस इंटरफेस, ये चूंकि ईमेल मार्केटिंग टूल है, तो जो आप फ्रॉम में डालेंगे वो आपको इनलिस्ट होके चला जाएगा। अगर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो आपके उस ईमेल पे जाएगा और ओपन कर लिया वो सारे डेटा तो आपके आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जो जिसको भेजना है उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप अपडेट करिए। सेकंड ये है कि फ्रॉम आप डालिए, फिर सब्जेक्ट लाइन डालते हैं, फिर उसके बाद ईमेल टेम्पलेट आता है। तो ईमेल टेम्पलेट आप वहां से अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको फोर्थ स्टेप हो जाता है, जब ये रेडी हो जाता है तो अपने आप ऊपर में ऑप्शन आता है प्रीव्यू, प्रीव्यू के बाद नीचे में आता है, उसके ठीक नीचे आता है प्रीव्यू के नीचे सेंड टेक्स्ट मेल, और उसके बाद आता है राइट साइड में, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो राइट साइड में फिर आता है सेंड। तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये चला। तो अगर यहाँ से आप स्टेप्स जा रहे हैं तो ये ड्राफ्ट में फिर जाने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम पहले ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम स्टेप्स में जाते हैं तो ये ड्राफ्ट की तरफ चला जाता है। आप जैसा बताए सर, कंप्लीट वैसे ही करा। मैं एक बार आपको एक बार और ईमेल जी जी बताता हूँ। जी और डिसेबल्ड है आपकी तरफ स्क्रीन अच्छा, से। एक मिनट जी। ये लाइक ड्राफ्ट में नहीं, वो कंपाइलेंस में डाल दूंगा, अभी बताता हूँ। जी ये ईमेल था। जी कंप्लायंस इशू बता रहा है। तो अब जैसे ऊपर भी देखिए कंप्लायंस इशू, यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो आप कंटेंट में नहीं यूज कर सकते हैं, वैसी चीज हो सकती है। इंफॉर्मेशन पे जाएं आप, जो आई आई जो आ रहा है जहाँ पे कंप्लायंस इशू लिख के आ रहा है जी, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ऊपर देखिए व्यू इश्यूज आपको देख रहा है, ठीक है। क्रिटिकल फ्लैग में डाल दिया सर। हाँ, तो टर्म्स ऑफ वायलेशन है जो कि आपको डाल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये है, आप चाहें तो इसको रिजॉल्व करके एक बार देखिए, फिर भी क्या दे रहा है, कंटिन्यू कंप्लायंस, ठीक है। फॉर्म है सर, लाइक वो कांटेक्ट करेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए तो ये आपको दिख के आ जाता है, तो फिर उसके बाद मैं आप ये पढ़ा था सर इन लोग के पॉलिसीज, अभी लाइक कंप्लायंस में डालने के बाद, तो शायद ये एक टर्म दिखा मुझे उसमें, ये अच्छा, वाला। एक मिनट जी, हाँ सही है। तो इसी वजह से शायद ये आपका कंप्लायंस में जा रहा है। कुछ और टारगेट करके एक बार डाल कर। हाँ, तो वो कंटेंट, अगर इस तरह का कोई कंटेंट है तो उसको, अगर आप वहाँ पे मैरिज या उस टाइप का कोई कंटेंट है तो उसको आप वहाँ से रिमूव करके फिर आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। मैरिज यस पार्टी सर, की जगह पे फैमिली फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो मुमकिन है उसी वजह से, तो जैसे आपने देखा कि कंप्लायंस में वो मैरिज और इसको लेके है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री थोड़ा सा
रिस्पॉन्ड करती है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात होगी, ग्रो योर बिजनेस, इजी मनी, Yeah, yes, sir. तो उस टाइप की चीजें जो है आपको दिक्कत होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको दिक्कत हो जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वर्क एट होम, अर्न मनी, तो ये वो चीजें हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा स्पैमिंग मैसेजेस भेजते हैं, तो इसलिए जो है इसलिए ये होता है। ऊपर क्रिप्टो करेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि, और कोविड से रिलेटेड, जैसे कोविड से रिलेटेड तो हम लोगों के साथ भी हुआ, वी वर नॉट मच अवेयर, तो एक कंपनी के लिए, एक इवेंट के लिए हम लोग प्रमोशन कर रहे थे, एंड वी यूज्ड COVID-19 related equipment promotional things, so they blocked our Facebook account, they blocked our Mailchimp account as well. तो बाद में जब हम रियलाइज किए तो फिर उसको जाके एडिट रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें, बट इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर अस टू गेट बैक टू द नॉर्मल। और Okay. ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं एफिलिएट को। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग मोस्टली हम लोग समझ रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग किसको कहते हैं, बट फिर भी अगर हम इसके लेमैन फॉर्मेट में अगर हम देखें तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर कोई और होता है जो कि प्रोवाइड करता है, बट उसका सेलर कोई और होता है। ऑन सेल, on every sale or on every milestone that they achieve, the company actually provides some commission. अगर इसको हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर हम समझें तो गूगल के बहुत सारे एड्स आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे या मल्टीपल ब्लॉग्स पे आप देखते होंगे, या अमेजोन के भी एड्स आप देखते हैं, तो उस ब्लॉग के थ्रू या उस पेज के थ्रू अगर कोई भी आदमी क्लिक करता है, ऑन एवरी क्लिक गूगल चार्जेस समथिंग। से फॉर एग्जांपल गूगल ने 250 रुपए अगर एक क्लिक का चार्ज किया है, तो जिसके पेज से वो ट्रैफिक वहां पे गया है या क्लिक हुआ है, उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो इशू करता है। वो कितना होगा ये वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि हर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उन्होंने रख रखा है। सो एफिलिएट मार्केटिंग मींस द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ मर्चेंट्स वाया एफिलिएट्स। एफिलिएट्स, अब नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी जो जिसको कहते हैं वेंचर डेवलपर होता है, और उसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, तो एजेंट्स क्या करते हैं, वो से बेचते हैं और वो अपना कमीशन मेन कंपनी से ले लेते हैं। कभी कभी ये होता है वो टॉप अप करके लेते हैं, बट ज्यादातर ये होता है कि कंपनी उनको पे करती है, राइट। तो वो उनके एफिलिएट होते हैं जो कि उनके बिहाफ पे सेल करते हैं और वो अपना कमीशन लेते हैं। मर्चेंट इज द वन हु वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू द वेबसाइट। एफिलिएट इज द वन हु इज प्रोमोटिंग थ्रू हिज वेबसाइट, यानी एफिलिएट के प्रोडक्ट को वो अपनी वेबसाइट पे रख के प्रमोट करता है, एंड फॉर दैट एफिलिएट जो मेन कंपनी है दे गिव सम कोड, और फिर उस कोड के बेसिस पे वो ट्रांजैक्ट करते हैं, राइट। अभी ये जो हम लोग आज जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये है कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का क्या सिचुएशन है, राइट। और इम्प्रूवमेंट एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एफिलिएट मार्केटिंग, ये मतलब एक ऐसा कह लीजिए कि आपके लिए एक साइड में एक ऐसा एवेन्यू हो जाता है कि अगर आप कंटिन्यूसली अपने वेबसाइट ब्लॉग के ऊपर, पर्सनल ब्लॉग या पर्सनल वेबसाइट के ऊपर अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक बिल्डअप शुरू हो जाता है, और ट्रैफिक बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है कि जब ट्रैफिक बिल्ड होना शुरू हो जाता है, वहां पे ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और फिर उससे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। मर्चेंट को भी मिलता है और जो एफिलिएट्स होते हैं उनको भी मिलता है, ओके। उसी तरह से अगर देखें कि बहुत सारे नए टूल्स आ रहे हैं जो कि मार्केट में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, राइट, वो आपको उसके बारे में पता चलता है, और कुछ ऐसे एफिलिएट्स हैं जो कि वाकई मार्केट में अच्छा पे ऑफ करते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता करना है, और उसके बाद हम इसके बारे में वर्कआउट कर सकते हैं, ओके। ओवरऑल अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में किया जाए तो इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेयर यू अर्न कमीशन और मनी व्हेनेवर यू रेफर ए पर्सन टू बाय एनी ऑनलाइन प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरह से, यानी जब भी आप कभी परचेज या शॉपिंग करते हैं तो आप उसके लिए जो है इस चीज को वर्कआउट कर सकते हैं, ओके। तो जब मतलब आपके थ्रू या एफिलिएटर के थ्रू, एफिलिएट्स के थ्रू जो भी सेल होगा या परचेज होगा, उसके लिए
एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि सेल या परचेज ही हो, यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ जो है सिर्फ इम्प्रेशंस के ऊपर भी पे करते हैं, कुछ व्यूज के ऊपर भी पे करते हैं, और भी कुछ चीजों के ऊपर पे करते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से हमको वर्कआउट करना होता है। Now, how do affiliate works in India? एफिलिएट के लिए ये है कि सबसे पहले हमको एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले जो एफिलिएट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट स्लाइड में मैंने कुछ टॉप जो एफिलिएट मार्केटिंग को इनकरेज करते हैं या जो ठीक हैं, जिनका मार्केट में ट्रेंड है, उसका मैंने एक लिस्ट भी बना के ये इस पीपीटी में मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, वो प्रोडक्ट या सर्विस पिक करना जो कि आपके इंटरेस्ट का हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, बिकॉज आपको उसके ऊपर कंटेंट भी लिखना पड़ सकता है, आपको उसके लिए मार्केट करना है। तो जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह है कि भाई आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज पिक करना है जिसके लिए आप बेचना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग या वेबसाइट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। उस प्रोडक्ट के लिए आप पेड कैंपेन कर सकते हैं, फेसबुक कैंपेन, इंस्टा, गूगल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, सो दैट वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, या फिर एसईओ के जरिए से भी आप ट्रैफिक बिल्ड कर सकते हैं। ओके, और वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, सेल होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप एक अच्छा कमीशन, एक अच्छा अमाउंट जो है आप अर्न करना शुरू करते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है कि ये फर्स्ट मंथ से ही हो। आपको करना क्या होगा, कभी कभी बहुत कम अमाउंट आता है, लेकिन आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूसली जारी रखेंगे तो ये आपको एक रेकरिंग बिजनेस देना शुरू कर देता है। एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंड रेकरिंग बिजनेस फॉर एवरीवन, राइट। अब यहाँ पे जो जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग एन एफिलिएट नेटवर्क, एक तो सबसे पहला ये है कि एडवर्टाइजर जो है, जो मेन कंपनी है, उसकी वेबसाइट को आप प्रॉपरली रिव्यू करें, और उसका रिलायबिलिटी और रेपुटेशन को हमको चेक करना चाहिए कि भाई एक्चुअली उसका मार्केट में फीडबैक क्या है, उसके रिव्यूज हम पढ़ें, लोगों को पे आउट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनके पेमेंट ऑप्शंस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि इतना लंबा है कि आपका इंटरेस्ट लूज कर जाए, या इतना क्रिटिकल है कि आप कभी विड्रॉ ही ना कर पाए, आप उसको क्वालिफाई ना कर पाए, राइट। फिर सर्विसेबिलिटी है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है, कॉम्पिटिटिवनेस है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। फिर ये भी देखना होगा कि उसका मार्केट सैचुरेशन कैसा है, इन द सेंस ऐसा तो नहीं है कि वो इतना ज्यादा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अब फर्दर नया सेल होना थोड़ा मुश्किल है। प्रोडक्ट तो काफी अट्रैक्टिव है, लुक्रेटिव है, लेकिन इसका फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सेल राइज नहीं हो रहा है। अब सेल के राइज होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगा, गूगल ट्रेंड देखना पड़ेगा, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितने प्लेटफॉर्म्स पे कितना गूगल के सर्च वॉल्यूम से भी हम पता कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का कितना पर मंथ सर्च हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमको पता करना पड़ेगा। और एक है कि कमीशन जो है वो हमारा रेकरेंस है या नहीं है, इन द सेंस ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट सेल पे तो आपको मिल गया, फिर फर्दर अगर सेल हो रहा है, या वही बायर, फॉर एग्जाम्पल मैं परचेजर हूं शहरयार की वेबसाइट से जो कि सिल्वा का प्रोडक्ट है,
सलवा का प्रोडक्ट शहरयार अपने पोर्टल पे बेच रहे हैं और मैंने परचेज किया, तो शहरयार को एक कमीशन, सलवा की तरफ से एक कमीशन आ गया। बट अगर फिर से मैं शहरयार की वेबसाइट पे जाके सलवा का ही प्रोडक्ट परचेज करता हूं, तो क्या सेकंड टाइम भी पे आउट मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा? सो ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि वन टाइम ऑर्डर पे ही सिर्फ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये देखना है कि रेकरेंस किस पे, जितना भी सेल हो, जितना भी अगर उसके ऊपर एक्टिविटी हो रहा है, उसके ऊपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब ये कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो कि रेपुटेड हैं और इंडिया के अंदर इसका ठीक ठाक वैल्यू है और लोग, बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, मैं ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा, मुमकिन है। अच्छा, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये कभी ओपन करते हैं और कभी ये क्लोज कर देते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम तो इनका है, लेकिन किस टाइम पे ये दे रहे हैं और किस टाइम पे नहीं दे रहे हैं, ये उनकी वेबसाइट से ही पता चलता है। तो हर वेबसाइट, जितनी भी यहाँ पे वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसकी वेबसाइट पे आपको एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करना है और एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, रीसेलर क्लब हम लोग जानते हैं कि जो कि होस्टिंग प्रोवाइडेड कंपनी है, ठीक है। उसी तरह से गोडैडी है, ट्रिप एडवाइजर है, बिग रॉक का है, होस्ट गेटर का है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको होस्टिंग और डोमेन वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, उसी तरह से हॉस्पिटैलिटी वाले मिल जाते हैं और प्रोडक्ट वाले मिल जाते हैं। तो ये मोर और लेस एक ऐसा है जिसके अंदर ज्यादातर लोग बेनिफिट उठाते हैं और अलग अलग फॉर्मेट में एफिलिएट्स को बेनिफिट मिलता भी है। कभी कभी कैशबैक मिल जाता है, कभी कभी कुछ प्री डिफाइंड सर्विसेज आपको मिल जाते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब सर्विस, जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर की बात करें तो वो ऑन परचेज आपको कुछ बाद मौके पे आपको सीधा सीधा डिस्काउंट देता है, या कभी कभी आपको वॉलेट के अंदर आपको अमाउंट आ जाता है, सो दैट अगर आप अपने दूसरे कस्टमर के लिए अगर आप बिल कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपको रिड्यूस हो जाता है, विच यू कैन चार्ज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग होता है। मेक माई ट्रिप तो पूरा का पूरा इट वाज डूइंग वेरी एग्रेसिवली बिफोर कोविड। अभी का सिनेरियो कैसा है? रिसेंटली उन्होंने फिर से शुरू किया, हॉलीडेज को फिर से प्रमोट करना शुरू किया है, तो अभी फिर उन्होंने ओपन कर रखा है। यात्रा.com बहुत अच्छे लेवल पे आया था एफिलिएट में, बट नाउ दे आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। उसी तरह से आईबीबो का भी है, और भी ट्रैवल और हॉलिडे रिलेटेड कंपनीज हैं जिसका कि हम लोग देख सकते हैं। नाउ इस चीज को करने के बाद, मतलब मान ले कि आप ये 20 जो भी लिस्टिंग है उसमें से किसी एक को आपने आइडेंटिफाई किया, अब आपको करना क्या है? आपको एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाना है, ठीक है। उसका अवेयरनेस करना है, जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं डिजिटल मार्केटिंग के एतबार से, जो भी पढ़े हैं उसके थ्रू अवेयरनेस करना है, उसका प्रमोशन करना है, सारी चीजें करनी है। तीसरा है कि मार्केट योर लिंक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा मैंने कहा कि आप गूगल एड से, गूगल एसईओ से, यानी जो भी पॉसिबल चीज है आप उसके जरिए से अपने वेबसाइट के ऊपर मोर एंड मोर ट्रैफिक को लेके आने की कोशिश करेंगे। कीप पुशिंग एंड कीप कम्युनिकेटिंग विद विजिटर्स, ये आप करते रहेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, ये सारी चीजें चलेंगी। एंड देन फाइनली कुछ रेवेन्यू जनरेशन शुरू होगा। अब ये सारी चीजों को आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है। फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया करके अगर बैठ जाएंगे तो फिर लॉन्ग रन में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं पर्सनली ये बता रहा हूँ कि कुछ प्रोग्राम्स हमने ज्वाइन कर रखा है और पोर्टल बना के, यानी वेबसाइट बना के छोड़ दिया। तो शुरू में चूंकि हमारे पास टीम है तो चलो भाई उसको प्रमोट करना आसान है, लेकिन शुरू में ही हमको 3-4 महीने प्रमोट करना पड़ा। उसके बाद ऑर्गेनिक वो बिल्डअप करना शुरू हो गया, तो एवरेजली कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 8,000, कभी उससे ज्यादा। तो जब जैसा पुश करते हैं जैसा है, तो वो मंथली हमारा जो है रेकरिंग, यानी नाउ इट इज नॉट मेकिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसको पुश नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, एक एवरेज ट्रैफिक आ रहा है, वो हो रहा है, और वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, विच इज यील्डिंग सम रिजल्ट। तो उसके लिए बगैर कोई खास बहुत ज्यादा अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ शुरू में उसको एसईओ करके, उसके ऊपर ट्रैफिक बिल्ड करके, रेकरिंग रिविजिट करने वाले ट्रैफिक को जनरेट करके वो हम करते रहे, तो इट इज चर्निंग आउट गुड अमाउंट फॉर अस। सिमिलरली आई नो गाइज इन माय नेटवर्क ओनली जो कि अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके और काफी अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं, यानी कोई 30,000 तक जा रहा है, कोई 40 तक जा रहा है, कोई उससे भी ऊपर जा रहा है। सो इट इज अ बिग वैल्यू विच कम्स इन, प्रोवाइडेड आप
एक निश को क्रिएट करके अपने अपने वैल्यू को बना लें और उसके ऊपर रिकरिंग जो है ट्रैफिक आता रहे, यानी कंटिन्यूस रिविजिट होता रहे ट्रैफिक का, और तब जाके आप उसको जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब जो हमें स्टेप्स लेना है वो सबसे पहली चीज ये है कि चूज ए निश। एक पर्टिकुलर निश मार्केट आप चूज कर लीजिए जो कि बहुत ही सेगमेंटेड हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी ना हो, बट एट द सेम टाइम हाँ उसके अंदर एक रीजनेबली डिसेंट ट्रैफिक या डिसेंट लोग उसको उस चीज को सर्च कर रहे हो। सेलेक्ट एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, बिल्ड एन एफिलिएट साइट। अब एफिलिएट प्रोग्राम कितने तरह के हो सकते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। एक ये हो सकता है कि जैसे सीपीएम बेस्ड होता है, कॉस्ट पर 1000 होता है, ठीक है, माइलस्टोन बेस्ड होता है, तो हर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर आपको मिल सकता है। कुछ होता है वीडियोस के लिए होता है सीपीवी, कॉस्ट पर व्यूज, आपको जितने व्यूज होते हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। कुछ होता है कॉस्ट पर क्लिक जो कि गूगल के थ्रू है या और भी एडवर्टाइजिंग चैनल्स के थ्रू है, एड ब्राइट के थ्रू है, कि अगर आप उसका एड को क्लिक करेंगे तो आपको उसका एक परसेंटेज मिल जाता है। कुछ होता है कि सेल होने के बाद ही आपको परसेंटेज मिलता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। तो आप अलग अलग प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइन द बजट। अब ये सारी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपना बजट डिफाइन करना पड़ेगा, अपने आपको टाइम डिफाइन करना पड़ेगा या मनी डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट कंटिन्यूअसली आप उसके ऊपर काम कर सकें ताकि ट्रैफिक बिल्ड हो सके, ठीक है। रिव्यू ब्लॉग, आप रिव्यूज भी डालें, यानी यूजीसी जिसको कहते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट का ऑप्शन डालिए कि लोग वहां पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज डाल सकें। उसके बाद आपको ईमेल लिस्ट आपको जनरेट करना है, और ईमेल गूगल आपको ऑप्शन देता है कि 50 पीपल को आप मेल मर्ज के थ्रू आप 50 लोगों को भेज सकते हैं, राइट। तो आप धीरे धीरे, या कोई और एफिलिएट कोई और ईमेल मार्केटिंग का टूल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट आपको अपना ईमेल डेटाबेस बनाना पड़ेगा, चूंकि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से किया जाने वाला टूल है। ओके, उसी तरह से आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जिन्होंने कभी कमेंट किया हो या फेसबुक पे लाइक किया हो, कुछ ये है, तो उनके साथ आपको अपना रेपुटेशन बिल्ड करना है और नए नए ऑफर्स उन तक पहुंचाने हैं। आप ईमेल डेटाबेस भी बिल्ड कर सकते हैं, साथ में आप व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं जहां के आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, राइट। एंड लास्ट जो है, वर्क हार्ड। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी केक वॉक फॉर एनी एफिलिएट प्रोग्राम टू वर्क। तो ये आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कभी कभी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि एक वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक में पहुंचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि इस केस के अंदर आपको सबसे पहली चीज ये होता है कि आप एक एफिलिएट का कोई प्रोग्राम आप बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए वेबसाइट बनाएंगे, फिर उसको पेड प्रमोशन करेंगे, उन सारी चीज़ों को जो इंटरनेट यूजर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उन तक पहुंचेंगे। फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता है। आप कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट मार्जिन आपको मिलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए है या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए है तो कोटक महिंद्रा है या फिर आईसीआईसीआई है, या और भी और भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग भी एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करते हैं और इनके भी एफिलिएट्स को ठीक ठाक मार्जिन मिल जाता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट it's legalized or not legalized in Islam. I'm not talking about that. I'm talking about the opportunity which are available in the market related to it. तो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके बहुत सारे चीज, लोगों का बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने एफिलिएट्स को काफी अच्छा पे बैक करती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल। नाउ इसको मार्केट करने के लिए आपको क्या करना, कितने तरह के, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे तरह का प्रोग्राम है, पे पर क्लिक है, पे पर सेल है, पे पर लीड है, एक लीड जनरेट हुआ उसके ऊपर भी है, ठीक है। उसके बाद मल्टी टायर भी है, यानी ये क्वालिफाई किया तो आपको इतना मिलेगा, दूसरे लेवल पे गए तो इतना मिलेगा, तीसरे लेवल पे गए तो इतना मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, आप उन चीजों को प्रॉपरली समझिए, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करिए। इसको करना कैसे है, इसके सक्सेस के लिए जैसे मैंने 2 स्लाइड पहले बताया कि आपको क्या करना है, तो ये आपको करना ही करना है। अगर आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम से आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, आप किसी और जो एफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है, अगर आप उससे अर्न करना चाहते हैं तो ये आपको करना ही करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। सो यू हैव टू डू मींस यू हैव टू डू। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप उतना बेनिफिट नहीं गेन कर पाएंगे
जो कि होना चाहिए, राइट। एडवर्टाइजर्स को क्या बेनिफिट मिलता है, जो कि मेन मर्चेंट होता है उसके ज्यादा से ज्यादा एफिलिएट्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल होता है, ठीक है। जो पब्लिशर होता है, पब्लिशर इन द सेंस जो मर्चेंट के प्रोडक्ट को पब्लिश करता है, ठीक है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको एक मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसको कुछ अर्न कर सकता है। तीसरा, कंज्यूमर्स, क्या कंज्यूमर्स को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे खरीदने में उसको एक्स अमाउंट लग रहा है, दूसरी वेबसाइट कुछ डिस्काउंट दे रही हो या डिस्काउंट ऑफर कर रही हो तो उसको कुछ और मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज विन एंड विन सिचुएशन, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप कहीं ना कहीं से ट्रायल शुरू करिए और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हुए इसको लेके आगे बढ़ें। एडसेंस, जो गूगल का एडसेंस है, जो कि साइन अप आप कर सकते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अभी एडसेंस को लेके गूगल ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि आपकी वेबसाइट पे कम से कम हजारों की तादाद में आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा हो, कम से कम आप 6 महीने 8 महीने जो है उस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं, वहां पे डिसेंट ट्रैफिक आ रहा है, एंगेजमेंट भी अच्छा हो। अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस गूगल ने लगाए हैं, बट फिर भी क्वालिफाई एक बार कर जाते हैं तो वहां पे कंफर्म बिजनेस रहता है जो कि आप अर्न कर सकते हैं। You don't need to have a sales experience in this. Only thing is like you have to know more about digital marketing tool. अगर वो चीज आपका है तो then you will be able to succeed, right? अब जो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हमको हाई कीवर्ड प्राइस जो कि ज्यादा सेल्स ड्राइव करता है, और हाई कीवर्ड प्राइस किसका रहता है, यानी गूगल के कीवर्ड प्लानर में जाके आप निश बेस्ड, आप एक इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड को वहां सर्च करके आप देखिए कि उसका कॉस्ट पर क्लिक या सर्च वॉल्यूम कैसा जा रहा है। तो जिस कीवर्ड का कॉस्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा आरओआई जनरेटिंग कीवर्ड हो सकता है, राइट। तो आपको उस तरह के कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा। फिर आपको पेड कैंपेन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इतना कंपटीशन होगा कि बगैर उसके शायद आप सक्सीड ना कर पाए। या तो पेड प्रमोशन को आपको सहारा लेना पड़ेगा या फिर आपको कंटिन्यूअसली अपनी वेबसाइट पे इस तरह से काम करना है ताकि वहां पे ट्रैफिक बिल्डअप हो जाए, ठीक है। उसी तरह से वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन, और एक चीज और कर सकते हैं कि रिलेटेड कंपनीज के भी एफिलिएट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं एक वेबसाइट पे। इन द सेंस, अगर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं तो ए कंपनी का अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आप बी कंपनी का भी बेच सकते हैं वहां पे, ठीक है। कुछ कंपनीज रिस्ट्रिक्शंस करती हैं कि भाई अगर आपने इस कंपनी का जैसे गूगल एडसेंस का है कि अगर आप एडब्राइट को यूज कर रहे हैं तो गूगल एडसेंस नहीं यूज कर सकते, एडसेंस यूज कर रहे हैं तो एडब्राइट नहीं यूज कर सकते। एडब्राइट क्या है? एडब्राइट एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां की मल्टीपल एड्स लोग पब्लिश करते हैं, ओके। फेसबुक और ट्विटर, ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। गूगल के ऊपर, गूगल माई बिजनेस के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं। एवरीडे जो पोस्ट है, एक नया नया बैनर बना के उसके बारे में लिख के आप पोस्ट कर सकते हैं, रीचेबिलिटी बढ़ती है और फिर लोग वहां से आप तक पहुंच सकते हैं, राइट। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं, ठीक है। वहां पे लोग ये करना शुरू कर देते हैं कि आप इससे पैसे बना सकते हो, आप इससे पैसे बना सकते हो, यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। तो ये जो चीजें हैं जो कि स्पैमी हो जाता है और लोग आपकी तरफ आते हैं और अगर उनको पैसे नहीं बने तो वो आपके लिए नेगेटिव रिव्यूज छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिसके जरिए से आप पैसे बना सकते हो। इट इज कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज्ड मेथड बाय विच यू कैन मेक मनी, ठीक है। आप कोई प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हो या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। प्रोग्राम जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोग्राम होता है, वो पूरा प्रोग्राम है। प्रोडक्ट क्या है? अमेजोन का प्रोडक्ट हो सकता है, होस्ट गेटर का प्रोडक्ट हो सकता है, होस्टिंग सर्विसेज का एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो डोंट गेट इनटू सेलिंग प्रोग्राम्स कि इतने मेंबर बनाए, इतने ₹1000 मिल जाएंगे, इतने ऐसे किए, उस तरह की चीजों को अवॉइड कीजिए। ये प्रोडक्ट सेल हुआ और उसका ये प्राइस ट्रांजैक्शन हुआ और आपको उसका कमीशन आ गया, ठीक है। एक और चीज है जो कि हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारे हर्बल लाइफ या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की भी बात करें, वो सिर्फ बैनर बना बना के प्रमोट करते हैं, जबकि कस्टमर्स का टेक्स्ट रिव्यूज अपने प्रोफाइल पे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने
अगर गूगल माई बिजनेस पेज बनाया हुआ है या एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड अगर आप पेज बना रहे हैं तो वहां पे भी कस्टमर्स के रिव्यूज को लेना शुरू करेंगे। इससे क्या होता है कि आपके रिव्यूज जितने ज्यादा होने शुरू होंगे उतना ज्यादा यूजर जनरेटेड कंटेंट का वेटेज बहुत ज्यादा है गूगल में। ओके, आपके पास विजिटर्स होंगे लेकिन सेल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट इंगेजिंग नहीं है। या फिर आप चैटबॉट भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपने वेबसाइट पे चैटबॉट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं जहां बेसिक इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के बाद उस तक पहुंचा जा सकता है। ओके तो ये कुछ जो ध्यान देने की चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिस्टिंग्स हैं। उस अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये एक सिंपल मीन्स है फॉर अर्न एक्स्ट्रा और अर्न सम अमाउंट वर्किंग कंटिन्यूसली ऑन अ पर्टिकुलर निश इंडस्ट्री। अगर एक निश इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग या आर्टिकल बना के और कंटेंट बना के वेबसाइट बना के कंटिन्यूसली आप उसको पुश कर रहे होंगे तो स्लोली ऑर्गेनिक विजिटर्स उस पर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कुछ आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा कि जैसे किसी ने रेसिपीज अपना वीडियो में यूट्यूब में शूट करके उसके बाद अपलोड करना शुरू किया, धीरे धीरे करके उसकी विजिबिलिटी इतनी बढ़ गई कि जो मसाले वाली कंपनीज हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उसकी वेबसाइट पे अपना ऐड डालना शुरू किया। उसी तरह से आप देखते होंगे कि जैसे हैदराबाद के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो कि अलग अलग तरह के कंटेंट प्रमोट करते हैं या बनाते हैं और उसके बाद प्रमोट करते हैं, तो वहां पे भी वो किसी ना किसी ऐप के बारे में बात करते हैं। तो वो ऐप जो है चूंकि उसकी विजिबिलिटी उस यूट्यूब चैनल की इतनी बढ़ चुकी होती है कि ऐप वाले लोग उनको कुछ अमाउंट पे करते हैं। उसी तरह से अगर आप एक निश इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करें और उसके बारे में कंटेंट आप डालना शुरू करें, जैसे अगर मैं सैफ की बात करूं तो ट्रैवल रिलेटेड अगर कंटेंट है तो ट्रैवल रिलेटेड जेनरिक कंटेंट वो पोस्ट करना शुरू करें और वहां पे ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू हो सकता है। rather than only selling and pushing it for the packages, we can have various kind of things। वहां पे कौन कौन सा चीज है जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है, अबाउट हैदराबाद, अबाउट एनी अदर लोकेशंस, वहां पे कुजीन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुजीन्स क्या है, डे लाइफ कैसे आदमी गुजारेगा, नाइट लाइफ वहां पे क्या हो सकता है, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट्स क्या हो सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव। और जब यूजर हुक होना शुरू हो जाते हैं या उससे रिलेटेड न्यूज हो सकता है, जब यूजर्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करने लगते हैं। फिर जो भी आप वहां पे पब्लिश कर रहे हैं उसको लोग क्लिक करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर एक्शन करते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है और फिर इससे आप एक्स्ट्रा मनी हम बना सकते हैं। सो अर्न वाइल यू लर्न, और हॉबी को आप मॉनेटरी फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग उसी का चीज है, राइट। तो हमको करना क्या चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन है कि बी रियलिस्टिक। रातों रात आपके किले नहीं बनने वाले हैं, रातों रात आप करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। स्लोली बट स्टीडीली यू विल कीप वर्किंग, यू विल अर्न समथिंग। और जहां से भी आपको लगता है कि आपके टर्म्स के ऊपर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी जो उसने कमिट किया है उसके ऊपर पेमेंट नहीं हो रहा है, तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाया जिसपे अच्छे खासे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, अब वहां पे जिसका आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया वो अगर आपको पे बैक नहीं कर रहा है, आपको टाइम पे नहीं दे रहा है, या आपके शराइत आपके टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो आप कुछ नहीं, कोई उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड दूसरा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके, और जो आपने पहला प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था उसका एफिलिएट लिंक की जगह पे आप नया डाल दीजिए। ट्रैफिक उतना ही आएगा, सारी चीजें होंगी, बट ये है कि क्लिक्स जो है जो मर्चेंट 1 को जा रहा था वो मर्चेंट 2 को जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा, और रिव्यूज कंटिन्यूसली देखते रहें कि लोग उसके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम एफिलिएट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये हमको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसके बारे में हम वर्कआउट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट अबाउट इट कि हमने कुछ किया और हो गया। तो that's all from my point of view related to affiliate marketing. In case anything else you guys can ask it. सर ये हम लोग एफिलिएट के पॉइंट ऑफ व्यू का पूरा देखें सर, एक्चुअल में अगर ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट कैसा करेंगे? एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आपका
क्या सेल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सारे के सारी चीज को ऑटोमेट किए हुए हैं, ठीक है, तो फिर जाके आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ई कॉमर्स साइट है तो ई कॉमर्स साइट का बनाना आसान है, लेकिन अगर आपके एफिलिएट प्रोग्राम को आप बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको उस इंटरफेस को आपको डेवलप करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आप एफिलिएट प्रोग्राम आप अपना सेल करना शुरू करेंगे, यानी आप एफिलिएट को ऑफर करना शुरू करेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई उसकी तरफ से अगर सेल हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है, और फिर अगर इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है तो ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन फॉर्मेट में आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस अकाउंट से अपने आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज उस सेलर को, जो एफिलिएट है, आप मर्चेंट का रोल अगर निभाएंगे और दूसरा जो है एफिलिएट का रोल निभाएगा, तो एफिलिएट को इमीडिएटली आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे। तो ये पूरा का पूरा साइकिल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो आप भी एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करके आप मार्केट में जा सकते हैं। ओके सर, तो लाइक एक पूरा इसका इंटरफेस अलग है। पूरा ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सीआरएम प्रोसेस के थ्रू ही वर्कआउट होगा, अदरवाइज ये वर्कआउट नहीं हो पाता। मैनुअल तो आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते। ओके, यानी अमाउंट आया आपके अकाउंट में और उसके बाद उसके डैशबोर्ड में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होना, ये भले वो विड्रॉ कर सकता है कि 5,000 जब तक नहीं होगा तब तक वो विड्रॉ नहीं करेगा, बट उसके इंटरफेस में वो होगा। और दूसरी चीज ये है कि आज की डेट में क्या कर रहे हैं बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइडर जो मर्चेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो आप विड्रॉ कर 5,000 के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2,500 है तो इस अमाउंट को आप वॉलेट के थ्रू आप कोई भी परचेजिंग कर सकते हो। कुछ होता है कि आप इसी से परचेज करोगे तो आप यूज कर सकते हो, जैसे यात्रा का रिडीम पॉइंट है कि वो रखा रहेगा और पार्टली जो है वहीं पे यूज होता है, पार्टली आपके अकाउंट में रहता है। अब फिर आप फ्लाइट टिकट कब बुक करेंगे, कब जाके वो यूज होगा, तो बहुत सारे अब एक्सपायर होने शुरू हो गए, क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स भी अब फ्रीक्वेंट फ्लायर्स नहीं रहे, वो थोड़ा सा फ्लाइंग के ऊपर स्टे हो गया है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आपको दिख के आता है कि आपको इतना इतना अमाउंट का रिवार्ड पॉइंट है जो कि आप वॉलेट से यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरीथिंग, यू कैन ओनली यूज व्हेन यू आर डूइंग अ परचेज ऑफ सर्टेन आइटम्स। तो थोड़ा सा हम लोगों को ये दे, तो अगर आप ऑटोमेटेड प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कंप्लेन किया फिर से अगर रिटर्न कर दिया, तो अफिलिएट प्रोग्राम अगर रिटर्न होता है तो वहां पे क्या होगा आपको वो भी देखना पड़ेगा। जैसे अमेजोन की बात करें तो इसीलिए क्या होता है कि अगर मान लें कि वो प्रोडक्ट का सेल हुआ है और आपको एक कमीशन डिसाइड होके आपके डैशबोर्ड में चला गया, लेकिन अगर वो सेल कैंसिल होता है तो फिर वहां पे भी आपका इफेक्ट डालता है। तो ये पूरा का पूरा फ्रंट वे प्रोसेस, यानी राइट फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द पेमेंट टू डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, इनकेस रिटर्न होता है तो वो पूरा प्रोसेस आपका ऑटोमेटेड होना चाहिए, तभी जाके आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं। गॉट इट सर। राइट, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस सो फार? We have Dr. Irfan with us. Irfan sir, Yes, sir. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, well, because we have internals for these our MBA students, and the final exams for the final students also are about to come. Okay. So we had started this course on December 16th, I think 16th or 13th, somewhere around that time. Right. So it's been almost 45 days now. Right. So the course which we had, spoken about was for 45 days initially, you told. So could you please give me like the exact date when this would come to an end? Because, how many classes more are there pending? I think in principle, what we spoke, I'm like, initially when we started discussing, it was whole platter of topics that we discussed, but that was little lengthy course that we discussed initially. But जो हम लोगों का MOU हो रहा था, तो जो चीजें हम लोगों ने define किया था, so which is more or less which is being covered so far. Okay. Which is being covered. So I'm thinking of giving one more session of online reputation management tomorrow, and a general kind of question and answer session on recap of whatever we have discussed so far, and then we can go for a formal closure of this program as per your instruction. Okay, so when will we be having that session, sir? Tomorrow I'll have a online reputation and a recap of the session, whatever we have done. Okay, so and then when do we meet? Like, your choice, can you please drop a comment, because I wanted at least once we all meet up, because we had a very good session all these days, and it should not be like hanging
without any formal closure ceremony, and it should not be like it's done and what we say, done and dusted. It should not be like that. It should be very so I mean what आप I लोग suggest डिसाइड is, कर लीजिए, आप लोग अगर कोई नहीं, डेट देना आपके चाहते ऑफिस हैं, पे या फिर कहीं पे we'll meet out somewhere. हाँ, we can. I'm like, if you want to meet at your college, I'm okay with that. If you want to come down and meet at my place, I'm okay with that. Yeah, we'll have this meeting on this either on this Saturday or because Anytime. this Saturday we are working. Okay, so you just let me know. So We are. maybe this it will Saturday be- or next Saturday, whenever we It is second Saturday for me, so I have an off, so I can come down to your place in case you want. Okay, so we'll do one thing, sir. I'll take a opinion from everybody, and then we Right. can, if everybody is ready, then we'll have a meeting at some time in the college, maybe this Saturday only at about 12 o'clock or after 1 o'clock, somewhere around that time. Right. We can. I think that would be anyway. Guys have started. No, their this college. Saturday I have an internal for for the first year MBA students. Okay. So we'll have to do this meeting at about 3:30, somewhere around that time. No problem. You just let me know. I'll find out and I'll let you know, sir. Fair enough. Okay. All right, guys. See you then tomorrow. Allah Hafiz. Take care. Thank you. Okay.